Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. In this video I am going to explain you a chapter from the book of chemistry, and the name of the chapter is Introduction to Chemistry. There are so many subtopics to this chapter, and let us discuss about the first topic, that is what is chemistry. Basically, in the world which we are living right now, we have a higher standards of living in this world that the world has ever known, that the human race has ever known. The standards of our living becoming higher day by day, and that is why we need better health system, we need better food, we need our life to be much better day by day. We need our life to be improved every day, and that is the reason the use of chemistry and the researches in chemistry are increasing. Chemistry basically enable us to design all the sorts of materials. It also helps us to produce drugs. It is used to produce pesticides so that we can protect our plants from different viruses and bacteria, and it is used for the production of fuel that we use for our transportation, and to produce different fibers that is used in our clothing and all. So basically the use of the chemistry is enhanced nowadays to improve our lifestyle, and it also helps us to understand the nature of our environment and about ourselves also. The theories of chemistry eliminate our understanding of the material world from tiny atom to giant galaxies. Like we already know that our everything in this world is made up of atom, is composed of atom, consists of atom. So in chemistry we will study about the basic structure of atom and about the galaxies present in our universe. If we talk about the basic definition of chemistry, so the definition according to book is that chemistry is a branch of science that deal with the properties, composition and structure of matter. Chemistry also deals with the changes that involves in the matter. It also deals with the principles governing the changes which matter may undergo. So chemistry is used in almost every field of life, such as art and crafts. We use chemistry in the pottery making, glass making. We use pottery in dyeing, and so many other fields in which chemistry is also used. If we talk about the history of chemistry, so it originates from in the Greek period. The Greeks were the one who actually originates and also said that basically chemistry is one of the branch of science. We have already learned about Plato, Aristotle and different scientists in our history books. So these were the scientists who developed the basic idea of chemistry and helped in the earlier development of chemistry. They also introduced the concept of elements, atoms and the chemical reaction which happens in our daily life. In the ancient time, the people says that basically all the elements are made up of all the matter are made up of or maybe derived with some elements, and there are 4 of them, such as earth, air, fire and water, and all of them have their particular properties. For example, that the fire was hot and dry. They believe that the fire is hot and dry, so all the elements that are made up of fire or that are derived from fire are hot and dry. Right now we are discussing about the physical properties, that the physical properties of the elements which are derived from fire are hot and dry. Let us say that some of them are from earth. The elements which are derived from earth are dry and cold, and water was cold, hot and wet. Similarly, air was cold, wet and hot. After the Greeks, there were Romans who developed the chemistry further, and they also improved the facts which were present in the chemistry in the past, and in this time in the Romans era,
They also wrote some theories about chemistry. Like in the Greek period, there were only experiments, but in the Roman era, there were also some theories about the chemistry. After the Greeks and the Romans, there was a Muslim period of chemistry, and it started from the year 680. And in this era, there were so many scientists who worked on chemistry, so many Muslim scientists, and it is known as the Middle Ages of chemistry. During the first few years, or you may say during the first few hundred years, or you can call centuries of Hijrah, the Muslim scientists made very rich contributions in chemistry, in the various branches of science, or especially in the field of chemistry. And they introduced so many scientific methods and experiments also. So right now the chemistry which we are using right now is basically depends on the knowledge of those scientists and scholars, those Muslim scientists and Muslim scholars. The alchemists develop and use many laboratories equipment such as funnels, beakers, crucibles for melting and fusions, and other different weighing scales and weighing balances to discover the new ideas. These all experimental techniques were basically developed by the Muslim scientists, and Jabir bin Hayyan, Al-Razi, Al-Biruni, Ibn Sina were some of them. If I talk about Jabir bin Hayyan, he is generally known as the father of chemistry, and he invented the experimental methods for the preparation of nitric acid, hydrochloric acid, and white lead. He also developed the method for the extraction of metal from their ores and dyeing clothes. Basically, we are wearing the different colored dupattas right now, all thanks to Mr. Jabir bin Hayyan, because he gave the idea of dyeing cloths. Then the next one is Al-Razi. He was a physician, alchemist, and a philosopher, and he was also an expert surgeon, and was the first to use opium and anesthesia. अच्छा, let me tell you what an anesthesia is. ड्यूरिंग एन ऑपरेशन, जब कोई मेडिकल ऑपरेशन हो रहा होता है ओटी के अंदर यानी ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो देयर आर टू वेज. या तो हम जो भी पेशेंट होता है उसको या तो उस पर्टिकुलर पार्ट को हम नंब कर देते हैं यानी सुन कर देते हैं, या फिर एनेस्थीसिया देके पेशेंट को बेहोश कर देते हैं. तो ये एनेस्थीसिया का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था कि थोड़ी देर के लिए पेशेंट को इस तरह सुला दिया जाए, इस तरह बेहोश कर दिया जाए कि उसको कुछ महसूस ना हो, ये एनेस्थीसिया का बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले अल-राज़ी ने दिया था. He also divided the substances into living things and non-living things, which was later adopted by Berzelius in 1806 to classify chemical compounds on the basis of their origins as organic and inorganic compounds. अल-राज़ी ने इथाइल अल्कोहल भी प्रोड्यूस किया था जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज़ होता है. फर्मेंटेशन प्रोसेस हम क्लास 6 की बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ लेट मी डिस्कस अबाउट अल-बिरूनी. अल-बिरूनी ने फ़िज़िक्स की फील्ड में, मेटाफिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, और उसके साथ साथ केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया. एंड ही वाज अल-बिरूनी जिसने सबसे पहले डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इब्न सीना. इब्न सीना वाज फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिकल केमिस्ट्री, फिलोसफी, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. बेसिकली ये जो बेसिक आइडिया है कि जो हम ड्रग्स बनाते हैं दर्द के लिए या और दूसरी चीज़ों के लिए, इसका सबसे पहले आइडिया इब्न सीना ने दिया था. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इसके बाद भी आए मुस्लिम साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट. दीज वर ऑल इन्वेंटेड बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट.
These were all discovered and invented by the Muslim scientists. Chemists of that period, however, devoted their energies mainly to the production of drugs for the use of medicines. और जो सबसे ज़्यादा उनका contribution था ना वो drugs के ऊपर था. अच्छा, now we were discussing about the Muslim period, but after the Muslim period there is also a modern period, and the modern period starts in 1627. So there were so many scientists who worked for the chemistry, and these scientists were also known as chemists. So there are very few names of them. There some of the scientists which I am naming that and such as Robert Boyle, J. Black, J. Priestley, Shell, Cavendish, जॉन डेल्टन की एक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है जो बहुत मशहूर है. इसके अलावा एवोगाड्रोस नंबर, अभी हम जब थोड़ा सा आगे जाएंगे इसी बुक में हम एवोगाड्रोस नंबर के बारे में पढ़ेंगे. एंड आफ्टर दैट देयर वर मेंडलीव का एक पीरियोडिक टेबल है, वो भी हम इंशाल्लाह ताला आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एम फेरेडे, जॉन डेल्टन, एम क्यूरी वो जो आपने अपनी उर्दू की बुक में मिस शबाना ने आपको पढ़ाया होगा मैडम क्यूरी के बारे में, जिन्होंने एक्चुअली मर्करी इन्वेंट किया था. नील बोहर एंड रदरफोर्ड की भी एक एटॉमिक थ्योरी है जो बहुत मशहूर है. सो देयर वर सम ऑफ द साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, और इन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की. कुछ ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे डिस्कवरी की, कुछ ने रेडियो एक्टिविटी पे डिस्कवरी की, कुछ नए एलिमेंट्स इन्वेंट कर दिए, कुछ ने कुछ नया डिस्कवर किया. तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अभी जिनको मॉडर्न एरा का साइंटिस्ट कहा जाता है. अब ये कंटिन्यूसली जो है वो एक साइंटिफिक रिसर्च हर फील्ड में चलती रहती है, और बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री में भी चलती जा रही थी. तो इसके बाद हमारे जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे उन्होंने केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया. तो देयर आर बेसिकली 9 डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और हम जल्दी से इसकी सारी डेफिनेशंस पढ़ते हैं. फिज़िकल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी केमिस्ट्री होती है. दैट इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड पॉलीमेरिक केमिस्ट्री. जिसमें से स्टार्टिंग की कुछ, जैसे फ़िज़िकल केमिस्ट्री हम अभी हमारी ये वाली जो बुक हम पढ़ रहे हैं ये ज़्यादातर फ़िज़िकल केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है, और कुछ पार्ट इसका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है. इसके बाद जब हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में जाते हैं, लाइक जब इंटरमीडिएट में जाते हैं, तब जो हमारी केमिस्ट्री है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिपेंड करती है. सो जल्दी से हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते चले जाते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल केमिस्ट्री. तो द फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द लॉज एंड द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन केमिकल रिएक्शन. यानी कि एज यू ऑलरेडी नो कि हर चीज़, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, एवरी मैटर इन दिस वर्ल्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम. तो बेसिकली फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और अभी मैंने आपको बताया कि ये वाली जो हमारी बुक है इसका जो एक बड़ा पार्ट है वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री पे ही डिपेंड करता है. तो अभी हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री, और फिर एंड की बुक में यानी एंड के कुछ चैप्टर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं. इसके बाद द सेकेंड पार्ट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच that deals with the carbon compound and the exception of carbon dioxide and carbon monoxide, metal carbonates, biocarbonates and carbides. Actually it is the chemistry of hydrocarbons and their derivatives. Most of the consumer products are organic in nature. यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कार्बन कंपाउंड्स के बिल्कुल प्रिसाइसली कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन कौन से डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि ये इतनी बड़ी एक फील्ड है कि कार्बन कंपाउंड से इतनी सारी चीज़ें बन सकती हैं और इतने सारे प्रोडक्ट्स डेवलप हुए हैं कार्बन कंपाउंड्स की वजह से कि इसके ऊपर पूरी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ही बना दी गई है, एंड दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स जनरली ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आइदर फ्रॉम मिनरल्स. सो बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है जो
ऐसी चीज़ों से रिलेट करती है जो चीज़ें, जो मिनरल्स और जो हमें ज़मीन के नीचे से चीज़ें मिल रही होती हैं, डिफरेंट रॉक्स और बाकी सारी चीज़ें, या डिफरेंट और दूसरी चीज़ें जैसे पेट्रोलियम है या जिप्सम है, ग्रेनाइट है और दूसरी चीज़ें जो हमें मिल रही होती हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। The next one is analytical chemistry. Analytical chemistry is a branch of chemistry that deals with the study of methods and techniques involved to determine the kind, quality and quantity of various components in a given substance. जैसे कि डेंसिटी की बात आती है जहाँ पर, जैसे कि डिफरेंट मेजरमेंट्स की बात आ जाती है जहाँ पर कि किस तरह मेजर करें, ये एवोगाड्रोस नंबर और ये सारी चीज़ें कि कितना वेट है, क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी है किस चीज़ में, ये जो चीज़ें होती हैं ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में आती हैं, यानी मेजरमेंट वाली केमिस्ट्री जो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर कुछ अमाउंट कार्बन का मौजूद है और कुछ अमाउंट लेड का मौजूद है या व्हाटएवर किसी और एलिमेंट का मौजूद है, तो हम इसको फिर जब हमें ये पता करना होता है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ कार्बन, कितना अमाउंट ऑफ लेड या कितना अमाउंट ऑफ कोई दूसरा मटीरियल इन्वॉल्व है, तब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज से कुछ अर्से पहले शायद आप में से कुछ लोगों को याद हो, मैंने एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि हमारे जो एयरप्लेन्स बनते हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इसका वेट कम करने के लिए इसको आयरन से नहीं बनाया जाता और इसका वेट भी कम होना चाहिए और इसको इतना टफ इसका स्ट्रक्चर हो कि हवा में जाने के बाद ये एयर प्रेशर भी डील कर सके, एयर प्रेशर के साथ भी डील कर सके। तो इसके लिए बहुत सारे कंपाउंड्स को मिलाया जाता है और फिर एक नई चीज़ बनाई जाती है, एक नया एलिमेंट निकाला जाता है। तो अब कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में इसके साथ मिक्स करनी है, क्या चीज़ को कितना मिलाना है, ये सब आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। After that there is biochemistry. Biochemistry is the branch of chemistry that deals with the compounds of living organisms, plants and animals and their metabolism in the living body. For example, जो हमारी केमिस्ट्री होती है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में भी पढ़ते हैं, दैट इज़ नोन एज बायोकेमिस्ट्री। और बहुत सारी ड्रग्स भी जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो भी बायोकेमिस्ट्री की ही फील्ड्स में। कि फॉर एग्जांपल कि अगर किसी को कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल कि मुझे एक फ्लू है या कोई भी रीज़न, अगर हम आज के टाइम की एक एग्जांपल ले लें जैसे कि कोविड-19 एक ये बीमारी है, तो इसके लिए ये डिफरेंट चीज़ें स्टडी करते हैं पहले कि ह्यूमन बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है और फिर डिफरेंट केमिकल्स को मिलाकर एक ड्रग प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डिफरेंट केमिकल्स को मिलाकर जो एक ड्रग प्रोड्यूस की जाती है, बेसिकली जो लोग ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं आर नोन एज बायोकेमिस्ट्स। So the next branch of chemistry is industrial chemistry, and it deals with the study of different chemical process that involved in the chemical industries for the manufacture of different materials like glass, cement, paper, soda ash, fertilizers, medicine, and a very few to discuss. There are a lot of them. The next field is the nuclear chemistry, and it is the branch of chemistry that deals with the study of changes occurring in the nuclei of an atom accompanied with the emission of invisible radiation. So the nuclear chemistry is basically the study of the atoms also, and it is the study of the nucleus of an atom, because in each atom there is also a nucleus in which protons and neutrons are present, and it is the study of precisely it is the study of the nucleus of an atom. The next one is environmental chemistry, and it is the branch of chemistry that deal with the study of interaction of chemical, minerals and different materials and their effect on the environment and animals and plants. Personal hygiene, pollution and health hazards are important for the areas of environmental chemistry. For example, if I talk about the environmental sciences or the environmental chemistry, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं, बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है यहाँ पर एक बाकायदा पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, स्पेशली सिविल, जहाँ पर सिविल वाली चीज़ें आती हैं वहाँ पर। ये इसलिए बनाया जाता है ये डिपार्टमेंट ताकि
ये डिपार्टमेंट लोगों को गाइड कर सके कि कहाँ पर क्या चीज़ बनानी है और इसके इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ शुगर मिल। किसी एरिया में अगर मुझे शुगर मिल लगानी है तो मुझे जो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रिसाइज जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से जाकर एक अप्रूवल लेना होगा कि क्या ये पर्टिकुलर जगह मेरे लिए सही है कि मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री लगा सकूँ, एक शुगर मिल लगा सकूँ, उसकी यहाँ पर मैं शुगर मैन्युफैक्चरिंग कर सकूँ। क्योंकि जब कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो उसका जहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग करते हुए, और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है या और भी चीज़ें इमिट हो रही होती हैं, केमिकल रेडिएशंस होती हैं। तो क्या उस एरिया के लोगों के लिए ये चीज़ें उनकी हेल्थ के लिए सेफ़ हैं या नहीं हैं, या फिर वो एरिया जहाँ पर मुझे ये अपनी फैक्ट्री लगानी है या मुझे अपनी ये जो भी शुगर मिल लगानी है उस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, क्या पॉपुलेशन मेरी मिल से दूर है या बहुत करीब है। ये सब चीज़ों को देखकर फिर ये इन्वायरमेंट की सारी चीज़ों को देखकर और फिर ये आपको अप्रूवल देते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज़ पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री बेसिकली वो केमिस्ट्री होती है जो डील्स करती है पॉलीमर्स को, प्रिसाइसली सिर्फ पॉलीमर्स को डील करती है, सच एज प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेपर्स, इन सारी चीज़ों को डील करती है। ये केमिस्ट्री कहलाती है पॉलीमर केमिस्ट्री। आजकल जो एक बिल्कुल एक नई डिस्कवरी है वो ये है कि पॉलीमर केमिस्ट्री मतलब पॉलीमरिक चीज़ों को यूज़ करके एक ऐसी कंटिन्यूस एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं।